morning. Good morning, DXN. Good morning, DXN RVC. Welcome to DXN RVC YouTube channel. I am Rupal Yogendra, and it is my pleasure and honor to introduce you today to our dynamic speaker, Mother of DXN India, co-founder of RVC YouTube channel and co-founder of RVC Training Organization, and fondly known as our Maha Guru Mata. Yes, you have guessed it right. We are joined here today with Dr. Ratna Gopal, MBBS, FCGP, FCIP, FAGE, ECFMG USA, specialty in family medicine. Everybody knows that she and her beloved husband, Professor Vasupalaya, are the first crown ambassadors of DXN India and the couple who brought DXN to India. But what you may not know is that she was the first one to be introduced to DXN Ganoderma in 1999 through her doctor classmates, Dr. Clarence and Dr. Shakuntala from Malaysia to India. At that time, Dr. Ratna was a strict allopathy doctor. She would never prescribe any herbal products. She was successfully running her own hospital in Chennai and serving patients as a family physician and gynecologist. With Dr. Clarence's guidance, she researched on internet about the mysterious Ganoderma, and based on whatever minimum scientific data that was present, she decided to get DXN's Ganoderma's quality and potency tested. She took the initiative and approached a renowned Indian laboratory. This lab was no ordinary lab. It performed the most stringent and sensitive of tests. She was surprised to see the faces of the lab scientists that who lit up in pure amazement and excitement upon checking and rechecking the results. It was in that moment that she knew she had landed gold, the elixir of life, the king of herb, Ganoderma. So, in April 2000, she actively helped launch DXN products in India and completely dedicated her time for the promotion of DXN products. Along with Professor, she has been conducting various product as well as leadership seminars. The couple went on to become the first star agent, first star ruby, first gold diamond, first crown diamond, and so on. Today, she holds the position of first crown ambassador in DXN India. She has over time become the role model to thousands of doctors and millions of women in DXN world, and all this through her sheer perseverance, hard work, and extensive knowledge accumulation and sharing. She has traveled to more than 75 countries and conducted more than 10,000 workshops, rallies, and higher level seminars around the world. They have built a huge network of more than 5 million direct sellers comprising of a host of doctors spread out in 234 countries, and have developed 18 crown ambassadors under their guidance. She feels that the transition from her noble profession of medicine to a divine and royal profession in DXN was worth doing for touching millions of lives. So, today, to give us a complete download on spirulina and give us all yet another chance to be touched, साक्षात डॉक्टर रत्ना वसुपाल, मेरी और आपकी महागुरु माता, आज हमारे बीच आज आ रही हैं आपको सबको स्पिरुलिना की सारी जानकारी देने के लिए। तो अपनी पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए कि कहीं कोई ज्ञान की मोती छूट न जाए। So make sure you are all ready with your notebooks and your pen, and so you don't miss any valuable lesson today.
What is it about the properties of a barely visible waterweed called spirulina that have got even President Obama's family so interested? In 1974, at the United Nations World Food Conference, it was announced that spirulina is the most ideal food for mankind. But what exactly is the blue-green alga called spirulina? It is a simple, one-celled form of alga, reaching sizes of 0.3 to 1 millimeter in length. These cells are able to capture the energy of the sun and utilize the nutrients in their watery environment. Then, through a photosynthetic reaction, the cells produce protein, sugars, fatty acids, and vitamins, as well as all the important minerals our bodies need. How is it that such a small cellular form should contain all the strength of life's vital forces? How is it cultivated and consumed? Why do astronauts use spirulina? And what do scientists report? Is spirulina a likely solution for recovery from malnutrition? And can spirulina really save the planet from the greenhouse effect? Stay tuned to discover Mother Nature's molecular miracle. Since its birth, spirulina has been one of the most important life forms on this planet. But it started playing this vital role a very long time ago. Okay. Good morning. DXN, good morning. Hello. Yeah. I will show some important slides for you to recollect for the members. First one about DXN spirulina, which is the best natural food. So as all of you know, many products, I will just explain which is very much needed. आपको जो जानना ही जरूर है टू बताने के लिए लोगों को, नया लोगों को, उसके बारे में थोड़ा बात करते जाऊंगी. नहीं तो इसमें लिखा है इंग्लिश में, वो भी कहूंगी. ठीक है. तो DXN स्पिरुलिना न्यूट्रिशन, ओके, जो हम ताकत के लिए जो विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड हर दिन हमारा खाने में आना है एज फूड सप्लीमेंट, और इट गिव्स इसमें हमको बहुत तरह के मिलता है. वो मैं बाद में बताऊंगी, वो स्लाइड आने के टाइम में. फूड हम जो खाते हैं, हम प्लेट में थाली में डालकर हर रोज जो खाते हैं, वो हमको हेल्थ देता है, लेकिन एनर्जी देता है, शक्ति देता है, लेकिन हमारे जीव कोशिका को जो चाहिए सभी नहीं मिलता है. तो हिपोक्रेट्स एक डॉक्टर, उसको हम मानते हैं, एलोपैथी डॉक्टर भी, ही वाज द फर्स्ट डॉक्टर इन वेलनेस प्रैक्टिशनर, फर्स्ट वेलनेस प्रैक्टिशनर, और स्वास्थ्य का प्रैक्टिस करने वाला दुनिया में वो ही है
2000 से ज्यादा बरस के पहले। और एलोपैथी में हम उनको पितृ है ना, फादर के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि वो जो बताए है वो ही हम फॉलो करते हैं। तो लेट उन्होंने क्या कहा है, लेट फूड बी द मेडिसिन, माने हर रोज आप 2 बार 3 बार जो जो खाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा औषधीय माने दवाखाने में मिलने वाला दवा नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। औषधीय अंश थोड़ा होना, ठीक है, लाइक जैसे कि अदरक ये सभी हम मसाला डालते हैं ना, और एंड मेडिसिन भी द फूड। इसका अर्थ क्या है, माने जब आप कोई दवा खाना पड़ता है रोग आने के बाद में, वो दवा ऐसे होना उसका बुरा असर नहीं होना, माने ज्यादा खाने से भी बुरा असर नहीं होना। तो हमको हम डेली जो खाते हैं उसमें हमको थोड़ा थोड़ा हमारा स्वास्थ्य की रक्षा मेंटेनेंस के लिए औषधीय अंश थोड़ा थोड़ा होना। और जब हम बीमार होते हैं और तो डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा ही दवा देना पड़ता है कभी कभी, उसको खाने से वो दवा ऐसा होना हमारा जीव कोशिका डैमेज नहीं होना। लेकिन ये कभी कभी नहीं होता है, खाना ही पड़ता है, डैमेज होता ही है। तो स्पिरुलिना मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ, इस दुनिया में ये ही बहुत आइटम्स इसके अंदर है। स्पाइरुलिना को बोलते हैं, इसमें सभी आइटम ज्यादा ज्यादा है, मैं डिटेल बताऊंगी। क्वीन, ओके, इट इज द क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्वीन ऑफ, तो रानी तो एक ही होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें 145 अंश है। उसके अंदर क्या क्या आता है हम देखेंगे, सभी विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड और ट्रेस एलिमेंट बहुत सारा है। आप उसके बारे में चिंता नहीं करना, वो नंबर देखकर ही आप ये पता लगाना कि इसमें इतना आइटम्स है, ठीक है। तो 6 दफा ये प्रोटीन जो हम अंडा में मिलता है उससे 6 गुना ज्यादा मिलता है इसमें प्रोटीन, माने 60 से 65 तक परसेंटेज तक रहता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली सोयाबीन या एग्स के से भी ज्यादा मिलता है इसमें। और ये ऑर्गेनिक है और ये वेजिटेरियन है। और 10 गुना पोटासियम, ज्यादा पोटासियम होता है, जो जिसके लिए हम फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं, सभी में सभी ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन इसमें ज्यादा रहता है। ये थोड़ा खाने से बस होता है। और 6 दफा इसमें लोहा होता है, आयरन, देन रा बीफ, ठीक है। मांस जो खाते हैं लिवर का, उसमें ही आपको विटामिन B12 मिलता है और लोहा भी ज्यादा मिलता है। ये इसमें लोहा उससे ज्यादा मिलता है, ठीक है, उससे ज्यादा लोहा माने जो हमारा खून बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। और 50 गुण इसमें लोहा ज्यादा होता है देन स्पाइनच, जो ग्रीन्स हम खाते हैं, हरा भरा वेजिटेबल्स खाते हैं। और इसमें ऐसा हेडिंग्स के अंदर आता है, कुल मिलाकर 145 तरह का आइटम्स होता है, जो सभी हर दिन हर घंटा हमारा जीव कोशिका को काम करने के लिए जरूरी है। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स उसमें 3 मेन है। क्लोरोफिल बोलते हैं, ये तो प्लांट से आता है, आने की तरह है। ये तो आल्गे है, ठीक है, ये तो ब्लू ग्रीन आल्गे। ब्लू बोलते हैं क्योंकि इसमें फाइकोसायानिन एक आइटम है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और क्लोरोफिल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य के आने के बाद में वो हमको ऑक्सीजन बनाकर देता है। और बीटा कैरोटीन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा आंखों के लिए, चमड़ा के लिए, वो जो कैरेट में मिलता है, इसमें 10 गुना है। और न्यूक्लिक एसिड्स है, DNA, RNA, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं। और हम लोगों के मानव के अंदर DNA ज्यादा होता है, RNA कम होता है। लेकिन आज का प्रॉब्लम जो है कोरोना, उसमें DNA बहुत कम है। वो एक नायलॉन कवरिंग की तरह होता है, जिसको हम हैंड वॉश करने से वो गायब हो जाता है। तो RNA बिखर जाता है, काम नहीं करता है। और मिनरल्स, आयरन, लोहा है, मैग्नीशियम, क्रोमियम और मैंगनीज,
जो चाहिए हमारा जीव कोशिका का हर काम के लिए वो सभी है। और ट्रेस एलिमेंट जिंक जो हम बोलते हैं थोड़ा थोड़ा 1000 में एक पंगा ये हिसाब से जिंक चाहिए। अगर जिंक के प्रमाण कम होता है तो स्पेशली बच्चे लोगों को वो जुलाबा लगता है, लूज मोशंस, तो वो दवा से ठीक नहीं होता है। अगर जिंक उनके बदन में कम है तो उनको बचा नहीं सकते हैं आईवी ग्लूकोज देने से भी। और सेलेनियम ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ट के लिए, ठीक है। पोटासियम हमारा शक्ति के लिए, और वो ज्यादा हुए तो भी प्रॉब्लम होता है, कम हुए तो भी प्रॉब्लम होता है, उसी को हम मॉनिटर करते हैं ईसीजी में। और विटामिन ए आपको मालूम है जो कैरेट में मिलता है वो आंखों के लिए अच्छा है और चमड़ा के लिए अच्छा है, ऐसा बहुत इसका यूज है। विटामिन के, विटामिन B12 थोड़ा है, और विटामिन के तो हमारा खून का ब्लीडिंग कम होने का है, उसमें शक्ति होता है। अगर कुछ खून बाहर आए खून के रगों से किसी भी इंजरी से वो बंद जल्दी होना है तो हमारे बदन में जितना होना चाहिए उतना विटामिन के होना है। अमीनो एसिड्स हमारे जीव कोशिका बनता है अमीनो एसिड से, प्रोटीन से, तो ये उसमें 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है और 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स माने सभी हमारे बदन में नहीं मिलता है। हम ऐसे चीज को खाकर उसको इकट्ठा करके रखना है, एक ही दिन में नहीं होता है। और GLA करके फैटी एसिड्स, तो कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, इस तरह का कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ठीक है। और ये सभी है नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, ये तो दवा की तरह केमिकल नहीं है। वो ही ये इम्पोर्टेंट विषय है, आप जानना है। ज्यादा लिए तो भी कुछ इसका बुरा असर नहीं है। तो मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ, वन ऑफ द टॉप 10 सुपर फूड्स होता है स्पाइरुलिना। और प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, ये क्या क्या करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मेडिसिन एंड प्रोडक्ट्स, ओके, जो बहुत कभी कभी खराब होता है, साइड इफेक्ट होता ही है, और फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स मैंने बताया ABCDEF ऐसा बोलते हैं। 40 से ज्यादा विटामिन है, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। ग्रेट फॉर सेल रीजनरेशन, हमारे जीव कोशिका का मरु उत्पत्ति होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो डैमेज हुआ तो रिपेयर होना यही है इसका काम है। रीजनरेशन, हीलिंग होता है, अच्छा होता है जल्दी। ग्रेट प्रोटीन सोर्स, सो प्रोटीन एक ऐसा अंश है जो बॉडी बिल्डिंग, घर बनाने को हमको ईंटा चाहिए ना, उसी तरह वो होना है, ठीक है, ब्रिक की तरह होना है। तो ये प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि इसमें 65 to 69% प्रोटीन है। आप स्पिरुलिना के डिब्बा में पड़े तो आपको मालूम होता है कि वो परसेंटेज अंडा से भी ज्यादा होता है, जिसमें 30 के अंदर होता है परसेंटेज, और सोया से भी 30-35 होता है, ये उससे भी ज्यादा है, ठीक है। और एंटी फंगल, ये सुपर फूड है। सुपर फूड इसीलिए है इजीली डाइजेस्टेबल। ये स्पाइरुलिना का जो स्प्रिंग दिखाते हैं पिक्चर में, वो स्प्रिंग है का दीवार जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वो अंदर हम खाने के बाद में अंदर जाने 1 सेकंड में ओपन हो जाता है, इसलिए उसके अंदर के चीज सभी न्यूट्रिशन चीज सभी हमारे खून के अंदर जल्दी जाता है, वेस्ट नहीं होता है। वही हम जब भी हम डॉक्टर लोग लिख के देते हैं मल्टीविटामिन रोग के बारे में, शक्ति के लिए, तो उसमें 12-15 आइटम्स होता है, लेकिन सभी केमिकल होता है, रासायनिक होता है। तो उसको खाने के बाद में 4 घंटे के बाद में जब पेशाब जाता है तो लोग देखते हैं कि उसका कलर रेड या ऑरेंज होता है, वैसा नहीं होना है। इसको जितना भी आप खाइए रेड ऑरेंज नहीं होता है, उसका अर्थ ये है रेड ऑरेंज है, तो लोगों को खुशी होता है कि हाँ मैंने जो खाया वो वेस्ट बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो ही बाहर जा रहा है, क्योंकि नॉट बायोलॉजिकल अवेलेबल, मैंने जीव कोशिका के अंदर वो पूरा नहीं जा सकता है। इसलिए हमेशा ये प्रोटीन को भी हम खाना खाने के 1 घंटे पहले ले लेना, नहीं तो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। और इसमें रोग निरोधक माने एंटी फंगस एक ऐसे तरह के रोग होता है जो चमड़ा को अंदर इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम करता है और तभी इंडाइजेशन होता है। एंटी एजिंग, तो आपको मालूम है
तो बुढ़ापा को वो थोड़ा दूर रखता है, क्योंकि स्किन का सेल्स को, चमड़ा का सेल्स को एक थोड़ा डैमेज हुआ था उसको रिपेयर करता है, ठीक है। और फाइट्स कैंसर अर्ली स्टेज, अभी शुरू हुआ है ओरल कैंसर मुंह के अंदर, तो डेंटिस्ट लोग उसको देखते हैं और स्पाइरुलिना देने के बाद में एक 3 महीने ऐसा कैंसर ठीक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। और एंटी बैक्टीरियल, और क्या चाहिए आपको, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ओके, ये सभी गुण इसके अंदर है, क्योंकि इतना आइटम इसके साथ है। ये तो बेस्ट नेचुरल फूड फॉर ऑल एज ग्रुप, तो उनका एज अलग अलग है, लेकिन सबके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि खाने का चीज है। और ये भी ऐसा है, ये 3 गोली, 3 कैप्सूल या 3 गोली हम खाए तो हमको इतना आइटम्स इसमें मिलता है। अगर उसी आइटम को हम खाने में इकट्ठा करके खाना है तो कम से कम हर दिन 3 बार 1-1 किलो वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जी और फल खाना पड़ता है। आप हिसाब कीजिए, लोग घर में 4 लोग है तो 12 किलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना, खाए तो भी उसमें पेस्टिसाइड्स वो भी थोड़ा होता है 100 ग्राम, और उसे अच्छा नहीं होता है। तो ये सिर्फ 3 खाना एक है, 1 किलो फल सब्जी खाना एक है, ठीक है, नेचुरल फूड है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट्स जो गर्भिणी लोग है उनको विटामिन ए वो टाइम में, और स्पेशली 2 महीने से 5 महीने तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे अंदर जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो 5 महीने तक ही हम जो देते हैं ऐसा न्यूट्रिशन स्पाइरुलिना, जिसमें सभी चीज है, वो अवयव बढ़ता है, वो और उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक से होता है, डैमेज नहीं होता है, और 5 महीने के बाद में वो बड़ा होता है। इसका बीज लगता है 5 महीने के अंदर, लेकिन हमेशा क्या होता है, ये 5 महीने के अंदर 50% गर्भवती लोगों को उल्टी आता है, क्योंकि लिवर का प्रॉब्लम, लिवर सूज जाता है, खाने का इच्छा नहीं होता है, तो उल्टी आता है बहुत महीने, 1 महीने 2 महीने ऐसा। तो उस समय वो जो भी खाना है उसको 1.5 हिसाब में खाना है, बच्चे को साथ में हिसाब करके, लेकिन अपने आप एक बार भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उल्टी आने का डर होता है। तो उस समय में उनका ये न्यूट्रिशन कम होता है, जो शक्तिवान न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन अंदर जाना है ना, क्यों जाना है, पहले बच्चे के अंदर वो सिस्टम डेवलप होना है, चाहे वो हार्ट का हो, किडनी का हो, ब्रेन का हो, ठीक है, लिवर का हो। अगर वो डेवलप 100% नहीं हुआ तो वैसे डिफिशियंसी माने कमियों के साथ वो बड़ा होता है 5 महीने के बाद में। तो क्या होता है, बच्चे का जीवन भर प्रॉब्लम होता रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। उल्टी होता है इसलिए वो जो भी है तो भी नहीं खा सकते हैं, तो स्पिरुलिना ये से एक दिन को 6 या 10 खा सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंखों के लिए है, ब्रेन के लिए है, और इसे 25 दफा ये स्पिरुलिना में 25 दफा ज्यादा कैरोटीन, माने कैरेट में जो हमको विटामिन मिलता है वो उसमें 25 दफा हमको मिलता है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग, जो डिलीवरी होने के बाद में बच्चे लोगों को, डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को माँ का दूध 1.5 बरस 2 बरस देने का भी एडवाइस है, बाकी पानी भी नहीं देना ऐसा बोलते हैं 6 महीने तक, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन जाता है, कीड़ा जाता है, ठीक है। तो उनके लिए, मदर के लिए, माँ के लिए ये हाई कंसंट्रेशन 60 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, 60 तरह का न्यूट्रिएंट है इसमें, तो उसको वो लेना अच्छा है, क्योंकि तभी तो अच्छा दूध आता है, अच्छा क्वालिटी आता है, और उनको भी वीकनेस नहीं होता है, और बच्चे भी अच्छी तरह से ग्रोथ होता है, इसलिए उनको इम्पोर्टेंट है। और अगला है, बच्चे जो बढ़ रहे हैं, उनका बड़ा हो रहे हैं, तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हड्डियों का ग्रोथ के लिए, ठीक से।
नहीं तो वो कभी कभी बेंड हो जाता है और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और बदन जैसे बड़ा बड़ा होता है ये कमियां भी बढ़ता जाता है। उसके लिए उस समय में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो एक बार ऐसा लग गया तो बच्चे लोगों को 12 बरस तक ये न्यूट्रिशन कैल्शियम जो रहता है उसको देना, वो नेचुरल कैल्शियम देना। अभी बहुत दवा मिलता है लेकिन वो दवा सभी ठीक है, ये एनिमल्स का हड्डी लेकर देते हैं, गाय भैंस के ऐसा पाउडर करके देते हैं, उसको पकड़े है गवर्नमेंट, फिर भी होता रहता है। तो एक दो कंपनी है जो ऑर्गेनिक नैसर्गिक नेचुरल कैल्शियम देते हैं, हमारा मिल्क में मिलता है वो अलग है, लेकिन न्यूट्रिशन इसमें है, स्पाइरुलिना में है ना, क्यों ना हम दे सके। और ये है वेरी इंपॉर्टेंट, माल नरिश्ड चाइल्ड माने कुपोषण, ठीक है। अभी तो आप सबको मालूम है, आगे मैं दिखाऊंगी डॉक्टर लिम्सियोजिन को, वो गुडविल एम्बेसडर फॉर 10 years 10 बरस के लिए इन सामने इंस्टीट्यूशन में दिया है, 10 बरस के लिए। तो माल न्यूट्रिशन माने कुपोषण ही मेन कारण है सभी रोगों के लिए, और उनका बदन अच्छा नहीं रहने के लिए, अच्छा ठीक समय पर नहीं बढ़ने के लिए, उनका वेट भी कम होता है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे को रोग आने को, और रोग आए तो भी वो जल्दी प्रॉब्लम हो जाता है। तो वर्ल्ड वाइड विश्व भर में यही प्रॉब्लम है, इसलिए इमसाम भी, इंडिया भी उसमें, डीएक्सएन भी उसमें ज्वाइन हो गया है अभी। तो 5 years 5 बरस के अंदर, हर दिन 5 बरस के अंदर के बच्चे लोग पूरे दुनिया में 40,000 से ज्यादा मरते हैं, इंडिया में भी 10,000 मरते हैं, ठीक है, क्योंकि खाने में कमियां। तो उनको इसको देने से वो मैनेज कर सकते हैं, और बाकी ऑर्डिनरी फूड जो भी देते हैं घर में प्रॉब्लम नहीं है। तो चमड़ा के ऊपर ये तो क्या करता है, चमड़ा ऐसा हार्ड नहीं होता है, वो तो सॉफ्ट होता है। तो रिंकल्स, वो लाइंस जो आता है वो भी नहीं आता है, रिप्लेस होता है अब। और चमड़ा के जो रोग आता है उसको भी संरक्षण देता है। पिंपल्स, सनबर्न, ये सभी है, उसके लिए भी ये अच्छा है। और ड्यू टू इट्स पोटेंट, इसमें क्या क्या इतना आइटम है, इसलिए ये इतना काम कर सकता है। एक बात समझिए, करीबन 150 आइटम्स है इसमें, हर एक ग्राम में, वो उसमें सभी अंश कुछ कुछ अंश एक मिलकर हम खाए तो वो काम करता है, ठीक है। तो स्किन अच्छा लगता है और स्वस्थ आरोग्य से रहता है, स्वस्थ। और अडल्ट्स, सो बड़े जो 12 बरस से 20 बरस तक, तो बॉडी का, हमारा शरीर का एसिड लेवल, पीएच लेवल, ओके, उसको बैलेंस करता है। यही इंपॉर्टेंट है गैनोडर्मा में भी, इसमें भी। पीएच माने एसिडिटी लेवल 7.1 रहना है, उससे बहुत नीचे हुआ तो एसिड ज्यादा हो गया, इसीलिए वायरल इन्फेक्शन होता है और बहुत प्रॉब्लम, फीवर आता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा रहना है वो अप टू 12 वो स्पाइरुलिना इज 100% अल्कलाइन, ठीक है, इसीलिए उसका प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए हम अप्रैल महीने से समर सीजन में सितंबर तक सभी लोगों को मोरिंजिया और उसके साथ स्पाइरुलिना लेने को बताना। एंड ये क्या करता है, खून के रगाओं को अच्छी तरह से उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है। छोटे छोटे रगाव जो जिसका संबंध होता है, कनेक्शन होता है जीव कोशिका, वो अरबों करोड़ होता है, उसके अंदर ही सभी न्यूट्रिशन जाना है। तो ये ब्लड फ्लो अच्छा होता है, वो इम्पोर्टेंट है। और उनको भूख भी अच्छे तरह से लगता है। और 35 बरस के ऊपर वाले लोगों को, एज ऊपर वाले लोगों को क्या होता है, हमेशा उस समय तक हमारा लिवर थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि हम परहेज नहीं करते हैं, जो मिलता है उसको खाते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना हजम होने के लिए लिवर इम्पोर्टेंट, और हमारा पेट का भी, उसमें रस आना है, इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक, पैनक्रियाज, लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल,
और जीरो कोलेस्ट्रॉल है, जीरो ट्रांस फैट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। कैसे कम करता है? ये तो अडेप्टोजन एक्शन है। अडेप्टोजन माने आपका अपना अपना घर में, सभी का घर में होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अगर बहुत करंट आ गया तो फ्यूज ऑफ होता है, कम है तो ट्रांसफार्मर से खींच कर घर को ठीक रखता है थोड़ी देर, ठीक है। वो ब्लड प्रेशर को भी ये हेल्प करता है। अगर ज्यादा है तो जरूर वो डॉक्टर का दवा लेना है, लेकिन लेने के बाद में भी कम नहीं होता है। मैंने एक केस के बारे में बताऊंगी। 2000 में श्रीलंका में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर, वो अभी है, चेन्नई को आए तो मुझे मिलकर जाएंगे, और उसका अभी 70 इयर्स है, बैंक मैनेजर रिटायर्ड हो गए हैं। उनको 30 बरस से हाई ब्लड प्रेशर कितना है, 300 ऊपर का सिस्टमिक, डायस्टोलिक डायस्टोलिक है 180। दुनिया में बहुत लोगों का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो डीएक्सएन स्टॉकिस्ट बने, तो हर महीना लेते थे, खाते थे। और उसका डॉक्टर है, एक एफआरसीपी डॉक्टर है, ठीक है, लंदन में पढ़ा हुआ डॉक्टर है श्रीलंका में। तो वो ने ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने, और लास्ट में बताया ये मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, दुनिया में और कुछ नहीं है आपका प्रेशर कम करने के लिए। आप ऐसा कीजिए, इसी को खाते रहिए, 3 महीने में एक बार आकर मुझे दिखाइए। तो जब इन्होंने आरजीजीएल स्टॉकिस्ट है ना, हाथ में है ना, खाते रहते थे उनका जनरल हेल्थ के लिए। और 3 महीने के बाद में जब एक बार गए डॉक्टर के पास ऐसा के टेस्टिंग करने के लिए, ब्लड प्रेशर वो 300 जो था वो है 120, और 180, 180 था, वो 80 बन गया। वो तो WHO का एडवाइस है 120/80, ठीक है। तो डॉक्टर को इतना अचरज हुआ, आपने क्या किया, आपने क्या किया? तो इसने बताया मैं डीएक्सएन करके मशरूम का प्रोडक्ट है मलेशिया से, उसका श्रीलंका के लिए स्टॉकिस्ट हूँ, मैं भी खाता हूँ, इसीलिए होगा ऐसा करके। और उसने एक आर्टिकल लिखा है वो बैंक मैनेजर्स के मैगजीन के अंदर, उसको भी हमने काफी रखा है दिखाने के लिए। तो रेगुलेट्स मैंने हाई आता तो थोड़ा कम करता है, कम है तो थोड़ा ज्यादा करता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर्स के इफेक्ट। और एनर्जी लेवल, एनर्जी मैंने शक्ति, हमारा जीव इसमें इतना अंश है ना, तो ये अंश में बहुत सारे अंश हमारे पेट्रोल की तरह जीव कोशिका को एनर्जी शक्ति देता है, वो इम्पोर्टेंट है। और वेट बैलेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी क्या है, जहां देखिए ब्यूटी पार्लर में, स्पा में और वेट रिडक्शन सेंटर्स हजारों रुपया खर्च करते हैं सभी लोग, लेकिन वो समझते हैं थोड़ा देर थोड़ी दिन उधर एक्सरसाइज करने से और हजारों रुपये 10,000 20,000 का पैकेज होता है, वो करने से ठीक होता है। हो सकता है वो तो एक्सेस एनर्जी ये बर्न करते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं ये 6 महीने के बाद में फिर वही वेट आता है, ठीक है। तो ये इसके संबंध में मैं एक बताना चाहती हूँ, हमने रिसर्च किया है वेट इंक्रीज क्यों होता है। लोग समझते हैं सिर्फ फैट से जाता है, कोलेस्ट्रॉल से, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ तो वो 20% कारण है, और 20% है हमारा हार्मोन इम्बैलेंस, जो आदमी के लिए अलग, औरत के लिए अलग होता है, फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन, उसका इम्बैलेंस हुआ तभी वो उसके वो कारण से 20%, ठीक है। और 30 बरस 35 बरस के बाद में सभी लेडीज वो वेट डबल हो जाते हैं ना, तो वो दूसरा कारण है। तीसरा है कुपोषण, अनीमिया, खून में पानी का अंश ज्यादा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है ना, इसीलिए पानी घुस जाता है हमारा खून के रगाव में। खून तो चलना है ना, वो पानी पानी खून है। और एक है, आप अगर आप 1 लीटर ब्लड एक बैग में 1 लीटर पानी, दोनों को आप मेजर करें तो पानी का वेट ज्यादा होता है, ठीक है। खून का वेट कम ही होता है, खून का वेट वजन कम होता है, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द ब्लड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, उसका वेट। तो इसीलिए बदन सूज जाता है, उनका वेट ज्यादा होता है। वो वेट बैलेंस के लिए वो ट्रीटमेंट को आता है।
लेकिन लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और थोड़ा एनर्जी ज्यादा यूज करने के लिए ये एक्सरसाइज वो सभी बताते हैं। और तीसरा कारण है ये कुपोषण से हीमोग्लोबिन कम होने से, खून में प्राणवायु लेकर जाने का शक्ति कम होने से और पानी भरने से ज्यादा हार्ट को अफेक्ट होता है। हार्ट को भी वो ही लो क्वालिटी ब्लड मिलता है ना, वो बहुत जबरदस्त हार्ट पंप नहीं हो सकता है। इसीलिए जहां जहां रुकता है, जहां जहां खून की रगाया है पाँव में, ऐसा जब हम नहीं सोते हैं, बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं तो सूज जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो पानी है, वो भू आकर्षण से नीचे आ जाता है, तो उनका वजन ज्यादा होता है, तो हार्ट फंक्शन कम होता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है, वीकनेस, और सांस भी ऊपर चढ़ता। और 5-20% है किडनी का। जब किडनी एक घंटा को इतना यूरिन कर सकता है 50 मिली, ठीक है, लेकिन जब ये कुपोषण से हीमोग्लोबिन कम होता है, खून में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उस और खून में पानी का अंश ज्यादा होता है, तो पानी का थोड़ा अंश पीछे रह जाता है हमारा बदन में। एक दिन नहीं, हर दिन, हर घंटा, क्योंकि हमको ये विषय मालूम नहीं है ना, तो वो किडनी ज्यादा नहीं बाहर बेच सकता है, घड़ी घड़ी वो काम करने में उसको रोग आ जाता है, ठीक है, किडनी फेल्यूर बोलते हैं। माने उसके साथ जो शक्ति है काम करने का, उसके 3 दफा 4 दफा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए किडनी को ओवर वर्किंग, वो तो रेस्ट लेना चाहता है और एक दिन वो पेशा भी नहीं आता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो तपासना करके सभी लैब टेस्ट करके स्कैनिंग करके बोलते हैं कि तुम्हारा एक किडनी तो गया और एक आधा गया है, चेंज करो, नहीं तो नहीं, वो नहीं हो सकता है तो 25 लाख होता है, वो नहीं हो सकता है तो हफ्ते में 2 बार 3 बार या 1 बार, जब तक तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट क्रिएटिनिन यूरिया ठीक नहीं होता है, तुम आते रहो, डायलिसिस 2000, ठीक है, 1 बार करे तो वो लिस्ट में लगा देते हैं, लगाना ही पड़ता है क्योंकि वो सांस लेना है ना। ये सभी प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम से आता है, ये हमारा कुपोषण से। और ये सिंपल भागना या एक्सरसाइज करना, वो तो सिर्फ हमको खून के बहाव ज्यादा करता है और थोड़ा वेट कम करता है, वो भी जो फैट का होता है, कोलेस्ट्रॉल का होता है, ठीक है। तो ये तो 5 रीजन जो है वेट इंक्रीज का, 5 रीजन को, हार्मोन इम्बैलेंस को भी ठीक करता है, तो ये सभी को ठीक करता है। कम से कम 1 बरस वैसा लेना पड़ता है। कितना लेना? स्पाइरुलिना आप बोलना, सुबह उठते ही खाली पेट 20 और 1 घंटा पहले टिफिन के ब्रेकफास्ट के 1 घंटा पहले 20 स्पाइरुलिना कैप्सूल या टैबलेट गर्म पानी या थोड़ा गर्म पानी में ले सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा पहले। और शाम को भी उसी टाइम में या 12 घंटे के बाद में 1 बार लेना, तो 20-20 लेना, कम से कम 30 लेना। तो लिए तो क्या होता है, हमारा बदन के अंदर एक सिस्टम है, हमारा ब्रेन में एक एरिया है, मैदान है, उसमें बहुत सेंटर होता है, कंप्यूटर के, मास्टर कंप्यूटर के सेंटर, एक बटन दबाए तो वो एक काम करता है। ऐसा ही इसमें भी हंगर सेंटर, माने भूख की सेंटर भी होता है, और थोड़ा खाने से हमारा भूख खत्म होने के बाद में हमको ठीक है सैटिस्फैक्शन, उसको संतृप्ति हो जाता है, ज्यादा नहीं खा सकते हैं, वो सेंटर भी होता है। ये स्पिरुलिना क्या करता है, वो सैटिस्फैक्शन सेंटर, हाँ मैंने खा लिया है, अब भर गया है पेट, आगे नहीं खा सकते, वो 4 रोटी खाने वाले 2 ही खाते हैं स्पिरुलिना लेने के बाद में। लेकिन इधर प्रश्न किसी के मन में ये आता है कि अगर कम खाए तो शक्ति कैसे होता है, कैसे वो काम कर सकता है। उसके लिए मैं बताती हूँ, वो तो वेट कम होता है, उसमें कैसे कम होता है, जो फैट उनके बदन में डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, लिवर में, मसल में, सभी जगह, ठीक है, वो ब्रेक होकर फिर शुगर हो जाता है। शुगर के 2 यूनिट, 1 यूनिट फैट होता है, तो वो रिवर्स मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। रिवर्स गियर में वो तो 2 पीस होता है, उसको हमारा बदन यूज करके, शुगर ग्लूकोज की तरह यूज करके एनर्जी के लिए, शक्ति के लिए, तो क्या होता है, अच्छा वेट लॉस होता है, माने आपका फैट भी कम हो जाता है और आपका
वजन भी कम होता है ना, लेकिन टाइम लगता है। 8 महीने के बाद में 5 किलो कम होता है, हमने देखा है, हजारों लोगों को देखा है। और थोड़ा वॉकिंग करना 45 मिनट्स 2 बार, और खाने में थोड़ा वेजिटेबल्स, ये दो फाइबर है जो उसको खाना, और ऑयल नहीं लेना, हमारा कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, ऐसा को थोड़ा परहेज, नहीं तो हमेशा की तरह खा सकते हैं। क्वांटिटी कम करना, आधा आधा, 4 रोटियां माने 3 रोटी ऐसा। लेकिन उनको ये रेगुलेशन आता है स्पिरुलिना से, ब्रेन से, ठीक है। उसको वीकनेस कुछ नहीं होता है, ओके। तो अंदर में जो स्टॉक हुआ है फैट, वो ब्रेक होके 2 यूनिट ग्लूकोज होता है, वो उसको हमारा जीव कोशिका यूज करते हैं। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक्शन ऑन द ब्रेन टू रिड्यूस एपेटाइट, यानी भूख को कम करता है। क्योंकि हम संतृप्ति हो गया, आगे नहीं खा सकता हूँ, उसमें आधा क्वांटिटी खाए तो भी ऐसा फीलिंग आता है, लेकिन वो वीकनेस नहीं होता है, उसका शक्ति रहता है, वो फैट ग्लूकोज बन के शक्ति देता है, ठीक है। ये तो मैं विस्तार में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ ऐसा बड़ा इंडस्ट्री हो गया है वेट लॉस का, ठीक है। तो वेट लॉस का इंडस्ट्री में हजारों लाखों रुपया लोग लगा रहे हैं, फिर वो परमानेंट रिलीफ नहीं है, वो फिर 1 बरस के 2 बरस के बाद में ओरिजिनल वेट आ जाता है, क्योंकि उन्होंने स्पिरुलिना नहीं लिया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और महामारी आने के पहले हार्मोन इम्बैलेंस से किसी किसी को बहुत दर्द भी होता है, वो मसल पेन से बच्चा जाने में, वो तो आसानी से ठीक हो जाता है, वो सभी हार्मोन इम्बैलेंस है। तो पहले ये समझिए स्पिरुलिना का 3 बड़ा काम है। एक है हमारा बदन का जो हार्मोन आइटम जो उत्पत्ति होता है, लेडीज हो जेंट्स हो, नहीं तो ग्लूकोज भी हार्मोन है, और किडनी का भी हार्मोन है, उसके ऊपर एड्रेनलिन, उसका भी 7 तरह का है हार्मोन। वो हार्मोन मैन्युफैक्चर रेगुलेट करता है स्पिरुलिना का आइटम्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऐसा है, ये 150 है, ठीक है। उसमें किसी किसी पैकेज ऐसा। तो ये तो खत्म हो जाता है, वो जब उसको पेन आता है 2-3 महीने में खत्म हो जाता है वो प्रॉब्लम, क्योंकि हार्मोन बैलेंस होता है, ठीक है। नहीं तो वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग एंड एथलेटिक्स, जो बॉडी बिल्डिंग ऐसे कर रहे हैं आदमी, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, क्योंकि उसमें 60% प्रोटीन मिलना है, स्पिरुलिना है 65 to 69%, और हाईएस्ट नोन सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अंश का बहुत बड़ा सोर्स है ये। तो 8 एसेंशियल, ऑल 8 एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने बताई ना। तो हमारा बदन में ये 8 तरह का अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है, वो नहीं मिलता है बदन के अंदर, नहीं मिलता है, बाहर से देना पड़ता है, खाने में देना पड़ता है। इसमें आसानी से वो मिल जाता है, कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है, तो बॉडी रिपेयर होता है, चाहे वो किडनी का प्रॉब्लम हो या दूसरे जगह का प्रॉब्लम हो। और ये तो नेचुरल प्रोटीन है, इसीलिए ये किडनी का पेशेंट है, प्रोटीन नहीं खाना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो ले सकते हैं, उनका रोग जल्दी अच्छा होता है। ये एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन। अभी स्पिरुलिना इज वर्ल्ड वाइड, ये तो मालूम है, क्योंकि सबको मालूम है दुनिया भर में। क्यों? भगवान ने, ये भगवान का गिफ्ट है गैनोडर्मा की तरह। भगवान ने क्या किया, 45 मिलियन बरस के पहले ही इसको पानी में बना के रखा था। उसके बाद में पानी में पहला जो कीड़ा आता है अमीबा, उसके लिए फूड है, ठीक है, एनिमल को माने मानव जाति को भी, ठीक है। तो ये इतना बरस पहले ही रेडी है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड एंड बिकम एंड रिकमेंडेड बाई जो संघ इसको रिकमेंड किया है, इमसाम आपको मालूम है, ओके, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर माल न्यूट्रिशन स्पिरुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, माइक्रो आल्गे है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नासा, ओके, स्पेस, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका, और हमारा रिसर्च को भी सपोर्ट किया IMA इधर इंडिया का। ये सभी और भी बहुत है। वो आप नेट पर जाइए, आपको 50 पेज A4 साइज में स्पिरुलिना के बारे में आपको आर्टिकल मिलता है। ये तो आप सभी ने देखा होगा ना, डॉक्टर लिम को गुडविल एम्बेसडर फॉर 10 years बताया स्पिरुलिना की वजह से,
ठीक है, हेल्प करने के लिए। ये तो हमारा रिसर्च है, ये इसमें राजा मुत्तैया मेडिकल कॉलेज में वो इंस्टीट्यूशन है, अभी 160 बरस का है, उधर रिसर्च किए। तो डॉक्टर रंजन भी होंगे, कभी इधर इधर बैठे हैं, और ये तो डीन है वो कॉलेज का, सबसे परमिशन लेके। ये तो बायोकेमिस्ट्री का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बहुत टॉप डॉक्टर सभी 6 महीने काम किया है इसके लिए, ठीक है, समाज के लिए। और डॉक्टर लिम मलेशिया से आकर ये सीडी को लॉन्च किया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई डीएक्सएन स्पिरुलिना सच इंपॉर्टेंट फूड फॉर यू एवरी डे, हर दिन इसको। इसीलिए इसका रूप भी बहुत, कैप्सूल हो, टैबलेट हो, या स्पाइरुलिना सीरियल हो, या कुकीज हो, इतने वैरायटी में, पाउडर हो, इतने वैरायटी में मिलता है। उनका एज के अनुसार, उनके टेस्ट के अनुसार वो खा सकते हैं, ठीक है, फूड की तरह खा सकते हैं। वही डीएक्सएन स्पिरुलिना, अभी आप ये जानना इंपॉर्टेंट है, स्पिरुलिना तो बहुत है, ठीक है, लेकिन कौन सा स्थिति में, कंडीशन में ये इसको शुद्ध करते हैं, और इसमें कीड़ा जो पानी में होता है उसको निकालने का तरीका है, और माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट करते हैं, सभी टेस्ट करते हैं डीएक्सएन में उसके लिए। तो क्वालिटी रियली मैटर्स। तो हमारा नाम तो, डीएक्सएन का नाम तो है क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता। यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग योर स्पिरुलिना फ्रॉम एथिकल सोर्स दैट डजंट ओवर प्रोसेस, उसका डैमेज नहीं होना, उसका हीट नहीं लगना है, पानी से लेकर उसको गोलियां करते हैं, और उसके पहले उसको टेस्ट करते हैं, उसमें दूसरे कुछ कीड़ा है, उससे तबीयत और बिगड़ जाता है, ऐसा कुछ। तो सब स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको। किसी किसी कंपनी ने सिर्फ ऐसा थोड़ा कलर लगा कर भी मैदा आटा को दे देते हैं, मालूम होता है वो। तो डीएक्सएन स्पिरुलिना इज अ परफेक्ट स्पिरुलिना, इसीलिए अभी इंसान ने रेकमेंड किया है, ठीक है। ये तो परफेक्ट है, माने इसमें कोई गलती फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी गुणवत्ता है। एंड ये तो रेयर कंपनीज है डीएक्सएन, दैट विल एक्चुअली शो यू सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, इसके अंदर क्या क्या है, कितने दिन उन्होंने टेस्टिंग करवाया है, शुद्ध है, इसको बिना फिक्र के खा सकते हैं, ओके, ट्रांसपेरेंट है, कोई भी कंपनी को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्पिरुलिना के, वही स्पिरुलिना हम स्पिरुलिना क्यों लेना है। अभी थोड़ा स्पिरुलिना के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये तो ये सभी एज ग्रुप के लिए है, यू नो, एज कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ, आपको मालूम है, टैबलेट, सीरियल, ठीक है, डीएक्सएन स्पिरुलिना सीरियल, कुकीज सभी है। और किसी किसी देश में सिर्फ पाउडर भी मिलता है, मलेशिया में तो, लेकिन हमारा सीरियल बेस्ट है टेस्ट में। सभी बच्चे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और पर स्पेशल पीपल, लेडीज और चिल्ड्रन, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। क्या होता है, लेडीज जब प्रेग्नेंट होते हैं वो पहले 3 महीने 50% लोगों को उल्टी आता है। क्यों उल्टी आता है, उनका लीवर जो है वो सूजन हो जाता है, वो प्रेगनेंसी के हार्मोन आने की वजह से। किसी किसी को ज्यादा आता है, बच्चे के लिए वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो उनको जब खाने की इच्छा नहीं होता है वो नहीं खा सकते हैं, खाए तो उल्टी होता है। लेकिन अंदर एक बच्चा पल रहा है, उसको खाना कैसे, इसके खून के द्वारा जाना है ना, इसको भी ज्यादा नहीं है, उसको भी कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो स्टंटेड ग्रोथ होता है। उसका ग्रोथ, उसका बदन जो टाइम महीना बढ़ना है वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 महीने होने तक प्रोटीन फूड वो लेना पड़ता है। लेकिन नहीं लेने से क्या होता है, बच्चा का ब्रेन काम नहीं करता है, वो ऐसा क्या बताना, ब्रेन शार्प नहीं होता है। और उसका बदन का अवयव सिस्टम, चाहे खून का सिस्टम हो, हार्ट का हो, ब्रेन का हो, लिवर का हो, किडनी का हो, वो 100% ठीक नहीं होता है, वीक होता है। लेकिन 5 महीने के बाद में ही बच्चे का हर एक सिस्टम बढ़ता है। 5 महीने के पहले उसका बीज लगाने की तरह है, सिस्टम शुरू होता है, कंस्ट्रक्शन।
5 महीने से 9 महीने तक वो एकदम जल्दी जल्दी बढ़ता है। जब ये बढ़ता है उसी समय से ही उसको कमियां रहता है, और बाहर आने के बाद में क्या होता है, वो बच्चे का जीवन भर जब तक वो जिंदा है, इतने बरस है, ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, वो ही रोग है। ठीक है, उसको हम रोकना है तो माँ लोगों को उनका तबीयत के लिए, अच्छे खून के लिए, और इंडिया में 90% गर्भिणी लोग इतना खून की कमियां, कुपोषण है, वो डिलीवरी के लिए लायक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट दिया है। मैंने फिर क्या करना, डिलीवरी होना ही है ना, तो हो जाता है उसको खून से, बदन से खून थोड़ा 100 ml ज्यादा गए तो भी वो सह नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका सीरियस हो जाता है। 90% लोग, ओके, गर्भिणी लोग, तो उसको हम रोक सकते हैं। उसका जो डेंजर आने वाला है उसको हम रोक सकते हैं और रोक सकते हैं। और मैंने बताया पहले ही, बच्चे को अच्छा दूध देना 1.5 बरस तक उसका स्वास्थ्य के लिए। तो अच्छा दूध कहाँ से आता है, ये अच्छे चीज, कुपोषण नहीं होना, स्पिरुलिना जैसे चीज खाना। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी हो, प्रेगनेंसी में भी लेना, उसके बाद में 1.5 बरस से 2 बरस तक लेना। कितना लेना, जितना भी ले सकते हैं, कम से कम 6 से 10 हर दिन, 6 से 10 वो ले सकते हैं। तो इस और स्पेशल पीपल है, बच्चे लोग, जो मैंने थोड़ा डिटेल में दिखाया, बूढ़े लोग, ओके, जो 60 बरस 55 बरस के ऊपर है। हमेशा क्या होता है हमारा शरीर में, एक 50 बरस 60 बरस के बाद में हमारा लिवर, डाइजेशन, पचन शक्ति नहीं होता है अच्छा। हर बरस सभी अंग, अवयव 10% काम नहीं करता है, क्योंकि उसको खून की सप्लाई कम होता है, अच्छा खून नहीं मिलता है, और अच्छा खाना भी नहीं खा सकते हैं, दांतों का प्रॉब्लम होता है, और उनको वो जीर्ण रस नहीं भी आता है ठीक से, इसलिए उनको पेट थोड़ा खाने से भर जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या होता है, वो जल्दी बूढ़े होने की नहीं है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जल्दी बिगड़ जाता है। तो हम बोलते हैं, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमारा आबादी में 15 से 20% लोग है शक्कर का रोगी है। ठीक है, डायबिटिक है, ये तो बड़ा पॉपुलेशन है डीएक्सन के लिए, आप समझना। तो वो दवा लेते हैं कोई डॉक्टर से, उसको लेने दीजिए, उसके साथ में हम गैनोडर्मा को थोड़ा देना, 2 देना बस, क्योंकि मेडिसिनल आइटम होता है, रोगों को वैक्सीनेशन की तरह होता है। लेकिन स्पिरुलिना डेली 10, मिनिमम 10, 5-5-10 देना, तो रेट कम है ना, तो उसको देना और ये बताना, देखिए आप अभी 5 बरस से शक्कर का रोगी है, दवा ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, फिर भी ये रोग क्यों आया आप समझिए, मैं समझाता हूँ। ये रोग आता है इंसुलिन की उत्पत्ति कमी होने से, हमारा पैनक्रियास ग्रंथि से, क्योंकि एजिंग होगा, नहीं तो अंदर रोग होगा, कीड़ा होगा, पत्थर होगा, और कोई रोग होगा। ठीक है, तो किसी भी वजह से उसका उत्पत्ति कम होता है। लेकिन हमारा हैबिट होता है, आदत होता है, जो 25 बरस में हम खाते हैं भरपेट, वैसे ही 50 बरस से 60 बरस में भी खाते हैं। ठीक है, आप याद कीजिए, हमारा थाली जो है वो आधा साइज में होना 50 बरस के बाद में, तो क्या होता है, ज्यादा ही खाते हैं, लेकिन उधर जीर्ण शक्ति के लिए, जीर्ण रस, पैनक्रियास से इंसुलिन उतना उत्पत्ति नहीं होता है, इसीलिए हम बाहर से दवा या इंजेक्शन देना पड़ता है। वो ठीक है, लेकिन फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, और 10 बरस के बाद में क्या होता है, उधर इंसुलिन उत्पत्ति ही नहीं होता है, थोड़ा भी उत्पत्ति नहीं होता है। क्यों, ये जब डायबिटीज एक आदमी को हाई करके, जब वो परिस्थिति आता है, खून का टेस्ट करके हम देखते हैं, उस समय में उनका 50% वो पैनक्रियास ग्रंथि, जिससे इंसुलिन अपने आप आना, हम जो खाते हैं उसको पचन शक्ति के लिए, वो 50% 100% हो जाता है। 50% डैमेज होने की बाद में ही मालूम होता है, पहले जो शक्कर था वही शक्कर अभी भी है, क्योंकि आप उसी आइटम ही खाते हैं, उतना ही खाते हैं, फिर ये ज्यादा लगता है टेस्ट में। क्यों लगता है, अंदर जीर्ण शक्ति के लिए वो जीर्ण रस नहीं आता है,
ठीक है। तो स्पिरुलिना क्यों खाना, ये है इधर पॉइंट। स्पिरुलिना खाने से क्या होता है, जो 50% हमारा पैनक्रियास ग्रंथि में जो सेल्स है, वो बीटा सेल्स है, वो सेल जिंदा रहता है और स्वस्थ रहता है, इसीलिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। वो बीमार नहीं है, पहले का बीमार था, उसके लिए आप दवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसको डैमेज नहीं होने देना, इसीलिए स्पिरुलिना लेना, ठीक है। कम से कम डेली 10, 5 कम से कम 20 लिए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उसको रक्षा करना। आजकल तो डायबिटिक लोगों को अस्पताल बहुत एडवाइस करते हैं, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, आप पैनक्रियास को चेंज कीजिए, पैनक्रियास चेंज करना, ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट, जैसे ट्रांसप्लांट, जैसा किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट की तरह सुअर का जो लीवर, ये पैनक्रियास ग्रंथि होता है, उसको चेंज करते हैं, उसको आदमी को डालते हैं। वो भी एक सिस्टम है, वो भी एक ऑपरेशन है। कम से कम 30 लाख 50 लाख देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? स्पिरुलिना नहीं खाया। आप इसको इसके बारे में चिंता कीजिए, हर एक आदमी को ये चांसेस होता है। और इम्पोर्टेंट है डायबिटिक्स में, एक डायबिटीज आए तो 10 से 30 बरस के अंदर कितना भी अच्छा दवा, एक्सरसाइज, परहेज करे तो भी, क्योंकि सुबह में जो खाते हैं उस टाइम शुगर ऊपर जाता है, फिर दोपहर में, रात में ऊपर जाता है, फ्लक्चुएशन होता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लक्चुएशन की तरह। जब ये ऊपर जाता है ज्यादा, हर एक टाइम वो हमारा जीव कोशिका को डैमेज करता है, ठीक है। वो फ्लक्चुएशन को हम ऐसे ठीक नहीं कर सकते हैं। हम वो फ्लक्चुएशन से क्या होता है, वो एक आदमी को डॉक्टर बोलते हैं तुम डायबिटिक हो गया हो, और 10 बरस के बाद में, 20 बरस के अंदर तुमको या तो आंखों का प्रॉब्लम आता है, अंधा हो सकता है, या किडनी का प्रॉब्लम होता है, या हृदय का प्रॉब्लम होता है, या पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक होता है, बोलेंगे। उसको प्रिवेंशन के लिए हम एलोपैथी में कुछ नहीं है, सिर्फ शुगर कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो फ्लक्चुएशन को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि खाने वाला वो आदमी है, ठीक है। तो वो फ्लक्चुएशन को हमारा ये स्पिरुलिना कम करता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो डैमेज तो कम होता है। और ये बच्चे लोगों को स्पिरुलिना सीरियल 2 महीने के बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 100 करीबन 50 तरह की आइटम्स है, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, ठीक है, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, कैटालिस्ट, इतना आइटम हमारा जीव कोशिका के अंदर हर रोज, हर घंटा, हर मिनट जाना है, तभी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और बहुत दिन कुछ नहीं गया तो वो कुछ काम नहीं कर सकता है, काम करने का टूल्स है वो, ठीक है। तो इसीलिए डीएक्सन ने कुकीज भी रखा है, उसको दूध में मिला सकते हैं, पानी में मिला सकते हैं, बॉटल में दे सकते हैं, ऐसा। या आप सबको मालूम है एक्चुअली। तो इसको एक दिन का बच्चा को भी आप पानी में मिलाकर ड्रॉपर में लगा सकते हैं। तो छोड़िए, 1 महीने के बाद में इसको दूध में मिलाकर या पानी में मिलाकर उसको खिला सकते हैं, ठीक है। हर दिन कम से कम 2 सुबह और रात को दिए तो 2 कैप्सूल की तरह होता है। 2 कैप्सूल में जो 600 मिलीग्राम होता है वो बस होता है, ठीक है, उनका खून के बढ़ावा के लिए वो। इसलिए इसको ऐसा नेचुरल फॉर्म में और सब आइटम्स लगा के इसको किया है, ऑर्गेनिक क्रिया किया है मिलेट से। कोई कंपनी ऐसा नहीं किया है दुनिया में एक्चुअली। बहुत डिमांड है फॉरेन में भी, लेकिन अभी नहीं बेच सकते हैं, इंडिया में ही बहुत डिमांड है। तो और बड़े लोगों के लिए कैप्सूल है, ठीक है। तो कैप्सूल जो नहीं मिंगलना चाहते हैं उनके लिए टैबलेट है, ठीक है। तो ऐसा बहुत तरह के रूप में इसको बहुत एज के लोगों के लिए करके रखा है। तो इसका प्रमोशन बहुत अच्छा हुआ। तो ये छोटा डब्बा भी होता है ना, इसको भी आप कोई ले सकता है, फैमिली पैक नहीं लिए तो भी। तो इसमें आपको जितना आइटम्स मिलता है मालूम हो गया, अभी करीबन 150 तरह के आइटम्स भी मिलता है। और
ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज के दिन में। कोरोना का प्रॉब्लम है, कब खत्म होगा भगवान जाने, ठीक है, मिनिस्टर ही बता दिए है, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी कम करके गए हैं, उससे ज्यादा लाभ नहीं है करके। तो इसमें रिपोर्ट आया है, रिसर्च लोग अमेरिका से सभी, क्या है ये, स्पिरुलिना इज नंबर 1 इन गिविंग इम्यूनिटी फॉर कोरोना पेशेंट्स। कोरोना नहीं आने का है, कैसे? तो मैंने भी सोचा, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले ही 20 वर्ष के पहले ही, हाँ, इसमें 2 तरह का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है ये जीव कोशिका को। अभी एक वैक्सीनेशन दिया तो वो एक तरह का बढ़ता है, इसमें 2 तरह का हमारा जीव कोशिका के अंदर एक है हार्मोनल, इसमें हार्मोन प्रोडक्शन करने की शक्ति है, इसीलिए इसको हर एक लेडी, क्योंकि 10 औरत में एक को कैंसर आने का चांस है दुनिया भर, ठीक है। और कैसे 10% ऑफ द विमेन इन द वर्ल्ड टेस्ट करके देखा तो 10 बरस पहले ही मालूम हो जाता है वो हार्मोन इम्बैलेंस है। तो बड़े होते हैं, बच्चे पैदा होता है, हार्मोन इधर उधर ज्यादा कम ऐसा फ्लक्चुएशन होता है, और 50 बरस होता है, माहवारी बंद होता है, उस समय से भी वो कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, बच्चा बने का कैंसर और ओवरियन कैंसर, ठीक है। तो ये सभी आने का चांसेस हार्मोन इम्बैलेंस से। तो स्पिरुलिना में क्या है, वो हार्मोन बैलेंस हमेशा होता है, ठीक है। वो ज्यादा है तो वो एक्सेस बाहर जाता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट वैसा ही है, एडेप्टोजन वैल्यू है, गुणवत्ता होता है, ठीक है। इसलिए वो ज्यादा नहीं होता है हमेशा, लेकिन कम हुआ तो प्रॉब्लम होता है। ये हार्मोन का एक इम्यून सिस्टम है सेपरेट, ये हार्मोनल ह्यूमरल बोलते हैं हम, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। जो हम जो वैक्सीनेशन देते हैं, अभी कोरोना का हो, किसी भी रोग का हो, ट्रिपल एंटीजन, वो सेलुलर होता है, वो सेल जीव कोशिका, हमने जो इंजेक्शन दिया है बच्चे को, उसको मुंह को याद रखता है, मेमोरी चिप में याद रखता है, 2 बरस 3 बरस 15 बरस ऐसा। तो जब भी वो हवा से आता है उसको भगाता है, ठीक है। लेकिन ये हार्मोनल अंदर से आना, खून से आना, वो स्पिरुलिना में वो शक्ति है। इसका एक एग्जाम्पल है एक, इसीलिए ये एंटी कैंसर भी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लाल रक्त कण, उसके अंदर हीमोग्लोबिन चलता है, रूट, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर ही प्राणवायु चलता है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन हमारा खून के टेस्ट करे तो 6 होता है, 7 होता है, आदमी बात नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको सांस चढ़ता है और कभी कभी बहुत सीरियस हो जाता है। तो हमेशा 12 के ऊपर रहना लेडीज को, जेंट्स को 14 के, वो इम्पोर्टेंट वेरी है। तो एक है इसका 3 इंपॉर्टेंट लाभ है। एक है हार्मोनल सप्लाई, वो तो उसका रॉ मटेरियल, जैसा कि हम चावल का आटा बना के रखो आज, कल सुबह उठकर डोसा कर सकते हैं, इडली कर सकते हैं, आप हम किसी भी वैरायटी का कर सकते हैं। वैसे बेस मटेरियल बोलते हैं, बेस मटेरियल, वो बेस मटेरियल इसमें है, जिसको हमारा जीव कोशिका जब जरूरत पड़े उसको वो आइटम जो चाहिए उसके रूप में उसको लेता है। वो हार्मोनल और सेलुलर दोनों इम्यूनिटी इसमें है। एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट जो ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी का रोगी, 25 बरस की औरत, पढ़े लिखे है, तो किसी भी दवा को दिया तो डॉक्टर वो ठीक नहीं हुआ, लंग्स ट्रांसप्लांट करना बता दिया, ठीक है, दिल्ली में। तो हमको कंसल्ट किया और हमने बताया तुम ऐसा करो, एक 8 महीने 10 महीने तभी नया आरजीजीएल आया था, आरजीजीएल डेली 10-10 लोग, ठीक है, और स्पिरुलिना बाद में आया एक्चुअली। उसमें उसको क्या हुआ, लंग्स ठीक हो गया, स्टेज पे आकर बात किया उसने, ठीक है। और हमने डिस्कस किया, हम और डॉक्टर रंजन, डॉक्टर सभी डिस्कस किए कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो फाइनल हमारा पॉइंट्स था ये हमारा आरजीजीएल में और इसमें भी सेलुलर इम्यूनिटी होता है, हार्मोनल इम्यूनिटी होता है, लेकिन स्पिरुलिना में ज्यादा होता है हार्मोन, ठीक है। वो आरजीजीएल में भी होता है, 50% होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो इट कैन सेव ट्रांसप्लांटेशन और
प्रोटीन तो इस बहुत सुपर है, इसका हम दूसरे किसी से नहीं भर सकते हैं। ये 3 स्पिरुलिना टैबलेट्स या कैप्सूल जितना हमको न्यूट्रिशन देता है, अगर उसी न्यूट्रिशन हमको चाहिए तो 30 किलो सब्जी, वेजिटेबल्स और ग्रीन्स लाइक ब्रोकोली और सभी ग्रीन लीव्स वाला सभी खाना कौन खा सकता है? 30 किलो एक दिन को, उसमें उसके साथ में पेस्टिसाइड भी आ जाता है। आप समझिए, ये तो बहुत आसान है। कितना पैसा लगता है? 10 रुपये भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सभी हम एनालिसिस करके उनको बताना है लोगों को, तभी तो कम से कम दिन में हमारा डिब्बा में 120 है पहले से, बड़ा डब्बा में, मीडियम डब्बा में, तो दिन में 2 या 4 एक बार, बस 1 महीने के लिए हो गया। ये ज्यादा बहुत प्रेशर भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं इसका प्रमोशन में 3 कैप्सूल 10 रुपया होता है। हर दिन एक काम कीजिए डीएक्सएन मेंबर, 3 कैप्सूल 10 रुपया से परचेस करके आपसे, या डब्बा हिसाब, आप 10 फीट जाइए, 10 लोगों से बात कीजिए, आपका बिजनेस हो गया। क्योंकि स्पिरुलिना को जितना डिमांड है उतना डिमांड और कोई चीज को नहीं है, क्योंकि ये तो फूड सप्लीमेंट नहीं है, ये तो फूड ही है, सुपर फूड है इसीलिए। और ये हम डीएक्सएन वाले थोड़ा हेल्थ का डेफिनेशन और फूड सप्लीमेंट का डेफिनेशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। तो सरल रूप से विश्व स्वास्थ्य संघ बोलता है हेल्थ माने नॉट ओनली एब्सेंस, सिर्फ रोग नहीं रहना ही स्वास्थ्य नहीं है, वो भी नहीं रहना, उसके अलावा स्वास्थ्य माने हमारे शरीर के अंदर, हमारा मन के अंदर एक ऐसा अच्छा अनुभव होना, वेल बीइंग बोलते हैं हम, मैं ठीक हूँ। तो शरीर में शक्ति, मन में शांति। तो ठीक है, तो ये 2 इम्पोर्टेंट है, वो 2 इसमें मिलता है। बीपी भी कम होता है क्योंकि ये ब्रेन को काम डाउन करता है। वो काम डाउन करने के लिए हम डॉक्टर लोग नींद की गोली भी दे देते हैं लोगों को, वो उनको आदत भी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम में हो जाता है। तो इमसाम अभी रिकॉग्नाइज किया है डीएक्सएन को। ठीक है, और आप सबको मालूम है पाकिस्तान में भी हमारा 1000 अंधे लोगों को, नाइट ब्लाइंडनेस, शाम होने के बाद में कुछ नहीं दिखता है उनको, बच्चे लोगों को, उनको स्पिरुलिना दिया था डीएक्सएन का, और उसमें कम से कम 50 लोगों को अच्छा हुआ, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन में थे, अंधे होने वाले थे, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में अंधे। तो उधर का प्रेसिडेंट ने में भी 10 बरस के पेड़ है, वो इसमें भी है, नेट में है, तो वो सभी लोगों को जो पैकेट दिया था डीएक्सएन का, और डॉक्टर लिम को सर्टिफिकेट दिए, डीएक्सएन स्पिरुलिना इज अ बेस्ट दिस वन आइटम स्पिरुलिना करके। ओके, तो स्पिरुलिना के बारे में रिसर्च हो रहा है। आप जो लोग इंटरेस्टेड है, आप नेट में जाकर स्पाइरुलिना www.spirulina.com डाले तो 50 A4 साइज पेज में इंफॉर्मेशन मिलता है। और जो लोगों को थोड़ा बच्चे का ये भी कमी है, उनको भी हस्बैंड को ज्यादा देना इसको, क्योंकि उसमें जो ये है आइटम्स है, वो स्पर्म लिक्विड में जो है वो है। और दिस इज या, और हमने जो रिसर्च किया है अन्नामले यूनिवर्सिटी में, राजा मुत्तैया मेडिकल कॉलेज में, वो उसका प्रेजेंटेशन इसमें भी हो गया है। इसे अच्छा है, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर लोगों ने, 10 लोगों ने इसका रिसर्च किया है 6 महीने। गरीब बच्चों को जिनका माता पिता सुनामी में बह गए, वो अभी इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक रिसर्च मई 13 जून में मेडिकल एंड डेंटल साइंटिफिक रिसर्च के में आया है। आप देख सकते हैं, उसको भी एक कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बस। और हमने सभी प्रेजेंटेशन दिया है सभी जगह में, 174 स्लाइड्स है, अभी टाइम नहीं है,
ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बताया आपको। और जो चीज अभी हाथ में मिलता है डीएक्सएन, और भी कुछ सिर्फ डीएक्स स्पिरुलिना का पाउडर भी आने वाला है, उसको आप किसी आइटम में भी मिक्स करके भी खा सकते हैं। ठीक है, आने वाला है, लेकिन थोड़ा स्मेल रहता है, बहुत लोगों को एडजस्ट हो जाता है, मलेशिया दुबई में भी है, लेकिन हमारा जैसा प्रोडक्ट किसी भी देश में नहीं मिलता है। या कुकीज हो या स्पिरुलिना सीरियल हो, बहुत लाइक करते हैं, बड़े लोग भी लेते हैं इसको, इमरजेंसी फूड है वो। ठीक है, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करके इसको समझिए पहला, तभी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे लोगों को, क्योंकि जब वो उसको मन के अंदर जाता है, विश्वास आता है तो कहते हैं। ठीक है, ये तो व्यापार के लिए वेरी अर्जेंट नहीं है, ये तो स्वास्थ्य के लिए। अभी देखिए कोरोना का कैसा हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, देखे तो दुनिया के आधा लोगों का सेहत गया। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई ये देखने का रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट, कि स्पाइरुलिना इज नंबर 1 immunity it gives to prevention, it gives to corona, because ये तो इसलिए मैंने सोच रही हूँ वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस का केस कैसे ठीक हुआ, इट वॉज ए डाउट फॉर अस। वो सेल के अंदर भी काम करता है, खून में जाकर भी इम्यूनिटी देता है, सेल्यूलर एंड हार्मोनल। ठीक है, और बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी एक्सेप्ट किए, हाँ ठीक है वैसे ही हुआ होगा, नहीं तो ये लेडी को बहुत दोनों लंग्स को ट्रांसप्लांट करना था। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी यूज कीजिए, सभी प्रोडक्ट यूज कीजिए, स्पिरुलिना डेली फूड की तरह यूज कीजिए। ओके, थैंक यू। या कम थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। Oh, I'm not at live. Huh? Yes. Good morning. How was the session? Madam ने just a short span of 50 to 60 minutes सब कुछ कवर किया ऑन स्पिरुलिना। आपको बहुत अच्छा जानकारी मिला स्पिरुलिना के बारे में। मैडम कभी कभी 3 घंटे उसका प्रेजेंटेशन है, वो हमने रिस्ट्रिक्ट करके उसको आज 50 से 60 मिनट के अंदर कवर करने के लिए बताया। अभी और एक खुशी का बात है, आपको मालूम है देख हमने एमसाम के साथ एक खून की कमियां कुपोषण को हटाने के लिए जो डॉक्टर लिम ने तैनात किया, सेव चिल्ड्रन, इसमें 1 मिलियन चिल्ड्रन को दुनिया में कुपोषण से बाहर लाने के लिए निर्णय लेकर अभी उसके स्पिरुलिना डीएक्सएन फ्री देने वाला है ये बच्चों को, गरीब बच्चों को। फर्स्ट वो इंडिया एंड पाकिस्तान, देन अफ्रीकन कंट्री, सभी कहाँ अक्यूट मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया है बच्चों को कवर करने के लिए 10 लाख बच्चों को, 1 मिलियन चिल्ड्रन, सेव 1 मिलियन चिल्ड्रन कैंपेन। हमने भी वो मैंने बताया ना, सुनामी अफेक्टेड चिल्ड्रन को अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में जो वो रिसर्च करके उसका रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, डेंटल एंड मेडिकल जर्नल, 13 जून 2012 वो इश्यू है। उसको आप गए तो वो नेट में मिलता है, www.iosr.org। इसमें आप डेंटल एंड स्पिरुलिना रिसर्च डाले तो मिलेंगे सब दो। एंड लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग हार्ड कॉपी आल्सो, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट टू ऑल आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकॉज सी जो हमारे साथ ताकत है उसको हम यूज करना मार्केट का डेवलपमेंट में। दुनिया में कोई भी देश में ये नहीं है क्या स्पिरुलिना का कुकी, फर्स्ट टाइम। अभी आपको मालूम है कर्नाटका सरकार ने CFTRI में ए फॉर्मुलेशन को मदद लेकर वो
सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पायनियर इंस्टीट्यूट है। इसमें ये कटले मिठाई, ये चिक्की ग्राउंडनट से गुड़ एंड ग्राउंडनट का ये मिठाई इसमें स्पिरुलिना डालकर बनाए। अभी ऑफ कोर्स वो तो साधारण से लोगों को लेने के लिए इजी होंगे, ये फूड है, ड्रग नहीं है, और टेस्ट भी होंगे इस कारण से। बट जो हमने बनाया है इसमें 11 आइटम्स है। इसमें हमने गनाडर्म के साथ 11 एडवांटेज, नो ट्रांसफैट, नो जीएमओ, नो मैदा, ये मिलेट से बनाए हैं, रागी बाजरे से सभी, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, नो प्रिजर्व। ये सभी के साथ ये जो स्पिरुलिना से बनाया है, इससे हम देखा है ये डिफरेंट सभी लोग दे सकते हैं, मेनली बच्चों से लेकर एल्डरली पीपल, हॉस्पिटल, द पीपल हु आर इन हॉस्पिटल। अभी ब्रेड, बिस्किट, ये सभी रस्क, वो सभी बेकरी प्रोडक्ट में देयर इज नो न्यूट्रिशन, लीव अलोन न्यूट्रिशन। ये इसमें मिलेट से कुकीज बनाया है विद स्पिरुलिना, वेरी हाईएस्ट न्यूट्रिशन। इससे रिकवरी में हम देखा है बहुत बड़ा एडवांटेज पीपल, एंड यू हैव टू गो एग्रेसिवली टू एनकैश द मार्केट। What is available in India? This is the specialty product available only in India in the world. No other country. Spirulina cookies, Ganoderma cookies, लाल कुंभी से Ganoderma lucidum से cookies और स्पिरुलिना से cookies कोई नहीं है। जैसे हमने Ganoderma से कॉफी है, चाय है, इसी तरह ये फूड आइटम, ये तो फूड है, ये सुपर फूड है, उसको साधारण आहार से खाने की चीज में, मिलेट कुकीज में, इसका बुक भी अभी those who are hurrying going to office or hurry during lunch time, no time to take lunch, or hurry in the evening due to any reason, आपको बाहर है, ऑफिस में है, दफ्तर में है, भूख लगते हैं, कॉफी डीएक्सन, लिंजी कॉफी, डीएक्सन ऋषि टी के साथ 2-3 कुकीज खाइए तो आपको कंप्लीटली आपका क्या होता है, भूख हटते हैं, पेट भी भरते हैं, न्यूट्रिशन भी मिला, जबरदस्त न्यूट्रिशन मिला। बहुत टाइम में मैंने आई स्किप माई ब्रेकफास्ट, स्किप माई दिस while I am in travel. I will never take in any in between the hotel unless we get a 5-star hotel and clean and all on the way we are using this food supplement of DXN, and similarly our wonderful product of spirulina cereal, that also anytime we can prepare only with water. Hence here nothing is required, this is already prepared, ready made, you have to just take. And iska market aaj there is more than in India market 62,000 crores bakery products, imagine. And usko हमने even a small fraction for creating awareness with the quality consumers. Imagine how big market we are sitting and how big sales and turnover we can make. आपको मालूम है, more than business, DXN is the cause. हमारा cause marketing, कौन सा कारण से हम DXN प्रोडक्ट को प्रमोट करता है समाज में, वो कारण तो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है। लोगों को स्वास्थ्य देना, रोगों को रोकना, निरोगी बनने का जो आशा है सबको, सब
निरोगी रहना चाहते हैं। आपको मालूम है कोई भी रोग आते हैं न्यूट्रिशन की कमियां से। ये न्यूट्रिशन ठीक ठाक हो गए तो बहुत रोग हमको नहीं आएंगे, आए तो भी वो डैमेज नहीं करेंगे, विदाउट डैमेज वो भाग जाएंगे और बाहर जाएंगे। ए फ्यू डेज मे बी स्मॉल थिंग्स इट कैन कम बट इट विल नॉट डैमेज यू। हमको बहुत बड़ा आज का दिन में जो बूस्टिंग द इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन, जबरदस्त में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसको सभी तरह में आप इस्तेमाल करें तो डीएक्सन का प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली स्पिरुलिना आज का स्पेशलिटी, इसका रिजल्ट आप इवन 1-2 महीने में आप लेने के बाद आपको मालूम है आपका खून का डेफिनेटली कोई भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन इंडिया में 50% के ऊपर लोगों को नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है। विमेन, चिल्ड्रन, अडल्ट, एज्ड पीपल, किसी को भी 50 से 60% खून की कमियां, 50 से 60% लोगों को। जनरल पॉपुलेशन आई एम टेलिंग, चिल्ड्रन इट विल बी हायर, प्रेग्नेंट वुमेन इट इज स्टिल हायर, गरीब लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन स्टिल हायर in that category, but total population के 50 to 60% of people are not having normal hemoglobin। अभी इसको लिए तो हम देखता है 7, 8, 9 बिलो 10 हीमोग्लोबिन जस्ट 3 महीने में 12-13 चलता है। और 6 महीने 1 year आफ्टर यूजिंग 1 year इफ यू आर going for HB test, it will be 14-15. I am maintaining 17.5 my hemoglobin, 17.5. Upper limit I am maintaining. I am loading because आपका खून कितना अपर लेवल में है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड आफ्टर मिनिमम लेवल as you know that for women 12 to 16, for men 14 to 18 एंड ये लेवल में विमेन को 15.5 16 तक हाईएस्ट तक हम गए तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा न्यूट्रिशनल पैरामीटर, हमारा विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, ट्रेस एलिमेंट सब ठीक ठाक हो गए तो ले अपर लिमिट को हीमोग्लोबिन जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हैंस to keep up the hemoglobin in the upper limit, an indication of good health, indication of longevity, indication of prevention, indication of up to date nutrition, इसको बढ़ाने के लिए हमको एक ही ब्रह्मास्त्र है। That is why स्पिरुलिना को it is called queen of nutrition। Hence ये न्यूट्रिशन का रानी है, महारानी है। इसको हमने घर में रखकर सबके स्वास्थ्य के लिए, इसमें आप पढ़ने का जरूरत नहीं है, रिसर्च करने का जरूरत। अभी लाखों रिसर्च करके रिसर्च पेपर, आपको टाइम है तो गूगल में स्पिरुलिना डाले तो गैनोडर्मा डाले को लाखों रिसर्च पेपर्स आपके हाथ में मिलेंगे। डेली रिसर्च चलता है, डेली। ये कोरोना का पीरियड में मैंने देखा नया नया रिसर्च स्पिरुलिना के बारे में ऑल ओवर द ग्लोब दे हैव पोस्टेड दैट इट इज ये नंबर 1 इम्यूनो मॉड्यूलेटर गैनोडर्मा स्पिरुलिना। हैंस boosting the immunity and nutrition, such a big God gift of nature. It is a God's gift to mankind. It is a natural product, no chemical addition, no fertilizers, no pesticides. It is only the clean water, either salt or even saline water. Any water it grows. Only it has to be monitored. The technology for monitoring, where they are cultivating in a controlled
scientific way in the pond, artificial pond created by the company. We have in many places spirulina cultivation. In India, we have in Pondicherry. Some of you can, after this corona, you can visit our Pondicherry factory and see our spirulina cultivation, how organically we are doing and how we are having 100% quality parameters approved by the WHO. इसीलिए इसमें हम ये डिब्बे के ऊपर हम डाला है क्या इसमें as per the WHO standards. Yes, as per the WHO standards, it is as per the WHO this standards that we openly declare because we are having that kind of quality. Hence, it is most affordable. 1 gram spirulina costs you almost 12 to 12 rupees. Nothing can be cheaper than this. 12 rupees, this is MRP I am telling you. And even if you take 1 gram, for example, for children, 1 gram below 5 years enough. For adult and elder, bigger children, it requires at least 2 grams to maintain this. And adults, we say 3 to 5 grams. If we take 5, 6, up to 10 grams, we can go to optimum health. In fact, I am going up to 10 grams because I want the maximum immunity in my body. And you can take it. It is just like eating any natural food, and that is left to you. How you are using, when you are using, anytime you can make use of that. Hence, make use of our such a beautiful product for boosting the immunity, boosting the health of all of you in your family. All children, parents, elderly people, women. मैडम ने अभी जो बताया है ये सबको चाहिए. इसके साथ हम आज का सेशन को विराम देंगे. मेरा वाणी को विराम देने के पहले I just want to tell you, we are not just working for a business or profit alone. We are working for a cause, not for applause. We work day and night for the cause of health, for the cause of prevention of diseases, for the cause of immunity, for the cause of making this world beautiful without any disease, and promoting the people and for their livelihood, those who want to do business. That is why our slogan is health, wealth, happiness and freedom. And it is creating the free society, society without any disease, society without any hunger, society without any malnutrition, and society without any poverty. That is our goal. Hence, it is a cause which makes us to work day and night. And I am sure that all of you will join the cause of wellness revolution to make this society healthy, happier and free. We will see again tomorrow, the same time, with a new speaker. I request all of you, those who have not yet done the subscription to this channel, you have to press the subscribe button and press the bell and give your like, comment, and so that once you subscribe, lot of our program will be there. The notification will come to you automatically. Wish you all the best. Go Crown and back.